Hello. Hello, Nazia. Can you hear me? Yes, sir. Right. Okay. Let us resume. दरमियान में वो फिर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. Sorry for this interruption. Right. I was saying that we can write this expression x naught inverse x minus 1 now is x naught inverse, and inside the parentheses you have x minus x naught, and then now x naught को अगर आप फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, you get the expression on the left hand side. Since x naught x and x naught inverse, these are elements in the Banach algebra. और Banach algebra में कोई से दो elements, say x y, उनका अगर आप नाम ले लें प्रोडक्ट का, that is less than equal to x now into y now. ये true है. This is the condition of Banach algebra. किसी और algebra में ये true नहीं है. और ये याद रखें, सिंपली अलजेब्रा में ट्रू नहीं है, अनलेस योर अलजेब्रा इज ए Banach अलजेब्रा. ये Banach अलजेब्रा की कंडीशन है, दैट एक्स वाई नाम इज लेस देन इक्वल टू एक्स नाम इनटू वाई नाम. और दूसरी कंडीशन अगर याद हो, यस, दैट इज आइडेंटिटी नाम इज इक्वल टू 1. Banach अलजेब्रा में ये दो कंडीशन भी ट्रू होती है. दिस इज बाय डेफिनेशन. अब यहाँ पे एक एलिमेंट आपका एक्स नॉट इनवर्स है और दूसरा है एक्स माइनस एक्स नॉट. उसका हमने नाम लिया हुआ है, दैट इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इनटू नाम ऑफ द सेकंड एलिमेंट. अब ये सेकंड एलिमेंट दैट इज एक्स माइनस एक्स नॉट, नाउ दिस इज बाय 1 क्या है, लेस देन 1 डिवाइडेड बाय एक्स नॉट इनवर्स. नाउ इसकी वैल्यू लगा दें, सो यू हैव लेस देन इक्वल टू एक्स नॉट इनवर्स नाउ into 1 over x naught inverse नाम. अब x naught inverse नाम, x naught inverse नाम ये कैंसिल हो जाएंगे. You are left with 1. So you have this condition, this inequality on the left hand side, x naught inverse x minus 1 नाम less than 1. ठीक है, ये कंडीशन आपके पास आ गई. राइट. अभी जो हमने रिजल्ट प्रूव किया, if A is a Banach algebra with identity and x is any element in the Banach algebra A satisfying the condition that x minus 1 नाम is less than 1, फिर क्या होता है, the element is regular. अब यहाँ पे कंडीशन आपके पास वही है, x not inverse x, this is an element of the Banach algebra, minus 1 नाम, this is less than 1. So this means that the element x naught minus 1 x is regular by your previous result. वहां पे आपके पास सिर्फ x था, अब यहाँ पे आपके पास instead of x you have this element x naught inverse x minus 1 नाम less than 1. So by previous result this element x naught inverse x is regular, means its inverse exists. अब चूंकि x naught inverse x आपके पास रेगुलर एलिमेंट आ गया, so this will belong to G because G is the set of all the regular elements in A. अब ये भी आपके पास रेगुलर एलिमेंट आ गया, so by definition of G this x naught inverse x belong to G since G is the set of all regular elements in A. Right. Up to here any question? ये कैलकुलेशन है, कोई स्टेप किसी स्टेप की समझ ना आई हो? सिंपल इजी है सर. अच्छा, ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब नेक्स्ट हमने लिखे सिंस x
is equal to x naught into x naught inverse x. x को आप इस तरह लिख सकते हैं, x naught को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लें आपके पास आ जाएगा x naught inverse which is equal to identity into x, again you get x. So you can write x in this form, and this x naught inverse x, this also belong to this set of all regular elements. Q, because we have proved that G is a group. और GUE में associative property group में in Banach algebra, associative property with multiplication holds. So it follows that this right hand side is belong to G, that is it is regular. So is this x, क्योंकि ये right hand side लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एलिमेंट है x. सो x इज आल्सो इन G, और यही हमने प्रूव करना था. दिस प्रूव्स दैट G इज ओपन. अब G ओपन सेट आ गया आपके पास इन Banach अलजेब्रा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जाहिर है क्लोज सेट होगा, क्योंकि Banach अलजेब्रा दो किस्म के सेट एलिमेंट्स होते हैं, रेगुलर और सिंगुलर. रेगुलर एलिमेंट्स को हमने G से डिनोट किया. अब इसी G का कॉम्प्लीमेंट इन Banach अलजेब्रा आपके पास सिंगुलर एलिमेंट रह जाएंगे, और सिंगुलर एलिमेंट्स को हम उससे डिनोट करते हैं S. G आपका ओपन आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्लोज सेट आ जाएगा. सो S इज क्लोज्ड, एंड दिस completes the proof of this result. अब आगे जाने से पहले कोई पॉइंट क्लियर ना हो? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर ये एक लास्ट पॉइंट है. देन पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन है, देन बाय द थ्योरम 7.10 x naught inverse into x is regular, right? ये थ्योरम आपके पास ये पहले मैंने कह दिया दैट ये मेरे नंबर है, आपके नहीं है. ठीक है, मेरे जी पास सर. तो काफी बड़ा कोर्स है ना. ये आपका प्रीवियस जी. अभी इस रिजल्ट से पहले जो हमने रिजल्ट प्रूव किया, वी रेफर टू दैट. देन बाय थ्योरम 7.10 वी मीन द प्रीवियस रिजल्ट. ठीक है जी सर. जी सर. जी सर. ये बस प्रीवियस पॉइंट रिजल्ट आ रहा हूँ वो सर. हमने प्रूव किया. प्रीवियस रिजल्ट आप जरा देख लें अगर आपके. नहीं सर, चलो वो लेट पॉइंट मैं नहीं. शो यू. एक मिनट खैर है, आप तसल्ली करने, जी कोई सर. ऐसी बात नहीं. जी सर. जी सर. ये रिजल्ट है, यहाँ पे है ना, ये कंडीशन आपको अगर नजर आ रहा है ना, इसमें जी x सर. -1 नाम इज लेस देन 1. कोई एलिमेंट Banach अलजेब्रा में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, देन x इज जी सर. रेगुलर. और इसको मैंने नंबर दिया हुआ है 7.10. ये मेरे पास जो पूरा कोर्स है उसका 7 चैप्टर है. वो तो साल का कोर्स था, बहरहाल ये तो चूंकि सेमेस्टर है, यही एक चैप्टर वहां से उठाया हुआ है जो रिलेवेंट है. बाय दिस रिजल्ट ये 7.8 से ये प्रीवियस रिजल्ट मतलब है. अब यहाँ पे x नॉट की जगह x की जगह आपके पास आ रहा है ये एलिमेंट x नॉट इनवर्स x -1 नाम लेस देन 1. जी सर. ठीक है, वही कंडीशन है ना प्रीवियस थ्योरम की. जी. Since this condition is बिल्कुल सर. satisfied by x naught inverse x, अब आपका एलिमेंट x naught inverse x है, so this element is regular. ठीक है, आपने थ्योरम 7.10 नहीं लिखना. अगर क्वेश्चन आ गया तो वो स्टेटमेंट आपने फिर लिखनी है. ये याद रखें, अक्सर लड़के फिर वही उन्होंने वो मेमोराइज किया होता है, फिर उसी को बाय थ्योरम 7.10. आपने 7.10 नहीं लिखना, बल्कि 7.10 की ये प्रीवियस स्टेटमेंट आपने लिखनी है बाय दैट रिजल्ट.
ठीक है। बस सिर्फ मुझे सर एक पॉइंट की कंफ्यूजन थी सर, आगे तीव्र पे चले जाओ, वो एक लास्ट अच्छा, लाइन में, बाकी सही है, सिर्फ वो पॉइंट जरा क्लियर करना चाहते हैं। क्लियर हो गया। ये तो क्लियर है सर जी, वो लास्ट लाइन का एक पॉइंट है, अगर पॉसिबल हो थोड़ा सा उसको क्लियर कर दे। मैं जरा क्वेश्चन कौन वो सा? तीव्र जरा दिखा दे सर, नेक्स्ट पेज पे से, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जी सर, जी सर। ये सर लिखा है ना, hence x not inverse into x multiply is the element of J, right sir? हाँ, ये क्लियर नहीं है। फिर अगर नहीं सर, ये तो क्लियर हो गया और ये ऊपर तीव्रम से प्रूव हो गया, सही लेकिन सही। इसके साथ जो लास्ट, since x is equal to x not inverse into x not inverse और x belongs to G है, right sir? हाँ हाँ, अगर इसके साथ अगर कोई दूसरा एलिमेंट x नॉट भी मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी इस G का भी एलिमेंट होगा। मेरा नहीं क्वेश्चन नहीं नहीं, सिर्फ ये ये तो जो आपके पास एलिमेंट है ना यहाँ पे, जो ये यहाँ पे एक्स नॉट आपने जी का एलिमेंट दिया हुआ था। एक्स इज एन एलिमेंट is the element of A। ऑफ अलजेब्रा। और फिर वन में हमारे पास ओपन बॉल की डेफिनेशन, सेंटर एट एक्स नॉट विद सही है रेडियस सर। 1 डिवाइडेड बाय एक्स नॉट इनवर्स ना, राइट। जी सर। अब ये ओपन बॉल की डेफिनेशन है, एक्स नॉट तो जी में है, लेकिन एक्स का हमें पता नहीं है, वो हमने जी अलजेब्रा में लिया हुआ है। अगर ये एक्स भी जी को बिलोंग करे, जी फिर सर। जो ओपन बॉल है आपका वन में जो डिफाइंड हुआ है, ये सारा जी में लाई करेगा। हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे यही है, एक्स नॉट ठीक है, हमारे पास जी में एलिमेंट दिया हुआ है, एक्स इज आउटसाइड दी जी, वी डोंट नो वेदर इट इज आउटसाइड और इनसाइड, लेकिन बट वी सेड दैट इट इज एन एलिमेंट ऑफ Banach algebra A। जी के भी सारे एलिमेंट्स एक एलिमेंट से, लेकिन हमारे पास सबसेट है जी, दैट इज द सेट ऑफ ऑल रेगुलर एलिमेंट्स। एक्स नॉट ओपन एलिमेंट आ गया जी में, क्योंकि अब ये हमने शो करना है कि एक्स भी जी को बिलोंग करे, राइट। अब इसको शो करने के लिए एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स नॉट को अगर आप फिर मल्टीप्लाई कर लें इनसाइड यू, आपके पास एक्स आ जाएगा। लेकिन हमारे पास रिजल्ट है दैट एग्जैक्टली जी सर। इज ए ग्रुप, राइट। और ग्रुप में वहां पे यस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स। तो दिस सही है सर, सही क्लियर हो गया सर। एक्स नॉट इनवर्स, जरा डेफिनेशन फिर देख लेना अलजेब्रा की, वहां पे दो कंडीशन, तीन क्लियर कंडीशन है, क्लियर हो गया सर। ठीक। तो दिस क्लियर बिलोंग क्लियर हो टू गया जी। सर, क्लियर हो गया। अब जी सर, चूंकि जी ये सर। राइट हैंड साइड जी को बिलोंग कर रहे हैं, और ये राइट हैंड साइड आपका बराबर है एक्स के लेफ्ट हैंड साइड के, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव एक्स, सो एक्स आल्सो बिलोंग टू जी। और ये आपने प्रूव करना था। दिस मीन्स दैट द एंटायर बॉल विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस 1 over x naught inverse, now this lies in G and hence G is open, ठीक। सही है Right, सर, okay, सही thank क्लियर you हो very गया much सर। for asking थैंक यू, this थैंक यू सर, question. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. नो वही अपनी तसल्ली बैठा कर लिया करें, ऐसे नहीं, जल्दी नहीं है मुझे। लेकिन अब चूंकि फेस टू फेस क्लासेस है नहीं कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं बोर्ड पे, और यहाँ पे सिर्फ जुबानी बताना होता है, नोट्स या लेक्चर आपके सामने है, उसको समझने की कोशिश करें, जहाँ पे समझ नहीं आते बेशक पूछ लिया करें। राइट, इज नॉट द नेक्स्ट रिजल्ट। अच्छा, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट से कोई भी किताब उठा दे, उसमें Banach अलजेब्रा का चैप्टर देख लें, जो भी किताब हो सब में ये रिजल्ट मौजूद है। तो दीज आर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं।
अब next is another theorem. This theorem says the mapping from X to X inverse. This is a map from G into G. अब G क्या है? G को already हम define कर चुके हैं. It's the set of all regular elements. We prove that this mapping, which is a mapping from G to G, is continuous and is therefore a homeomorphism of G onto itself. अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें, एक तो कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन और दूसरे होम्योमॉर्फिज्म. होम्योमॉर्फिज्म एक होता है होमोमॉर्फिज्म विदाउट ई, HOMOMORPHISM, homomorphism. And the other word is homeomorphism, HOMEO, homeomorphism, MORPHISM. एक में ई है, एक में नहीं है. ये होमोमॉर्फिज्म का टर्म ग्रुप में यूज होता है और होम्योमॉर्फिज्म, दिस टर्म इज यूज्ड इन टोपोलॉजी. Now what is homeomorphism? Let me recall the definition. By definition, a mapping, say, जिसको हम T से डिनोट करते हैं, a mapping T from topological space X into another topological space Y is called homeomorphism. आपके पास मैप है from one topological space into another topological space, then this mapping is called homeomorphism when if it satisfies three conditions. और वो तीन conditions कौन सी है? First is that this map must be continuous. Second, this map must be bijective. And third, its inverse is also continuous. T continuous, T is bijective, and T inverse is continuous. ये तीन condition अगर satisfy होती है, then we say that the mapping T from one topological space into another topological space is a homeomorphism. अब T का inverse exist करेगा, ये भी एक क्वेश्चन रेज होता है. T के डेफिनेशन तो है हमारे पास, T is continuous, T is bijective and T inverse is continuous. Yes, T inverse exists by the second condition. If T is a map from one space into another space, then the inverse of this map exists if and only if it is bijective. अब चूंकि हमारे पास डेफिनेशन में सेकंड कंडीशन है that T must be bijective, so T का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. अब हमने T इनवर्स को कंटिन्यूस शो किया, राइट. ये तीन कंडीशन अगर कोई मैप सेटिस्फाई करे टोपोलॉजी, देन वी से दैट द मैप इज होम्योमॉर्फिज्म. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है मैप फ्रॉम, अच्छा सॉरी, दूसरे कोई मैप कंटिन्यूस कब होता है? हमारे पास दो डेफिनेशन है. If F is a map from one space into another space, then F is continuous. एक sequential definition है और एक डेल्टा एप्सिलॉन वाली definition. Sequential definition कौन सी है? If there is a sequence xn converges to x, and this implies f of xn converges to f of x, then we say that f is continuous. यहाँ पे सीक्वेंस का जिक्र है. दूसरी डेफिनेशन है डेल्टा एप्सिलॉन वाली, कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? If f is a map from x to y
we say that this map f is continuous at a given point x naught if for every epsilon greater than 0 there exists delta positive such that f of x minus f of x naught absolute. अगर आप रियल एनालिसिस में डिफाइन कर रहे हैं लेस देन एप्सिलॉन implies x minus x naught absolute is less than delta. और अगर आप नॉन लीनियर स्पेस में कंटिन्यूटी डिफाइन कर रहे हैं तो इस एब्सोल्यूट को रिप्लेस कर दें बाय ना, राइट। तो हमारे पास दो डेफिनेशन है कंटिन्यूटी, एक वो सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी और दूसरी डेल्टा एप्सिलॉन वाली। सो हियर वी यूज द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा एप्सिलॉन। अच्छा, ये मैपिंग लिखने के डिफरेंट तरीके। अब यहाँ पे जो मैप हमारा डिफाइंड है फ्रॉम जी टू जी, फ्रॉम जी ऑन टू इटसेल्फ, राइट, x into x inverse of g into g. This means अगर आप कोई मैप ले लें f is a map from g into g defined by f of x is equal to x inverse. ये x inverse x का इमेज है, राइट। इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं f of x equal to x inverse. Then this map is a homeo continuous and is homeomorphic. ठीक, अब आपके पास क्या आ जाएगा, f of x की जगह x इनवर्स, f of x नॉट की जगह क्या आ जाएगा, x नॉट इनवर्स। ठीक, ये डिफरेंट मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ फंक्शन है। ठीक, अगर आप कोई इंटर की किताब उठा लें वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग ऑफ मैपिंग के किसी मैप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसको लिखते हैं, ये भी उनमें से एक लिखने का तरीका है। वैसे नॉर्मली हम लिखते हैं f is a map from x to y, फिर उसको डिफाइन करते हैं that for any x in x its image under f is equal to say y, ठीक, where y belong to the other space y. अब यहाँ पे मैप है f from g to g, right, for any x in g domain g f of x is equal to x inverse. ये आपने अपने पास लिख दें, खैर है, अगर पेन कागज है इसको that we can write this mapping like this as well, f of x equal to x inverse, right. अब हमने डेल्टा एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन यूज करनी है टू प्रूव दैट दिस मैपिंग इज कंटिन्यूअस। We say that x not be an element of G. x not हमने कोई एलिमेंट लिया G में, x another element of G, दो एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, such that x minus x not norm is less than equal to less than 1 divided by 2 times x not inverse norm. We denote this by 1. This one is an open ball in G. ठीक है, ओपन बॉल की डेफिनेशन है इन जी। यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स हम ले रहे हैं एक्स में, सॉरी जी में, एक्स नॉट और जी दोनों एलिमेंट हम ले रहे हैं इन जी, एंड एक्स नॉट इज द रेडियस एंड 1 divided by 2 times x naught inverse norm, this is the radius. So this is an open ball in G. We consider this open ball in G. जैसे प्रीवियस थ्योरम में हमने ये इसको लिखा था, since we can write x naught inverse x minus 1 now is x naught inverse
x minus x naught now. X naught inverse का अगर आप multiply कर लें inside, you get the term on the left hand side. And then using the definition of Banach algebra, this is less than equal to x naught inverse now into x minus x naught now. And using your condition 1, the second term is less than 1 divided by 2 times x naught inverse now. Now x naught inverse now cancels with x naught inverse now, and you are left with 1 divided by 2. That is x naught inverse x minus 1 now is less than 1. अब ये फिर हमारे पास वही कंडीशन आ गई, x minus 1 नाम is less than 1. अगर ये कंडीशन ट्रू हो देन x is regular. अब x की जगह हमारे पास ये एलिमेंट आ रहा है x naught inverse x minus 1 नाम less than 1 over 2, and of course 1 over 2 is less than 1. आपकी वही कंडीशन है. So by previous result 7.10 we are referring to the same result जो स्टार्ट में हमने प्रूव किया था. By that result we have that x naught inverse x is regular, and so is an element of G because G is the set of all regular elements. ये वही आर्गुमेंट है जो प्रीवियस थ्योरम में हमने लिखे थे. अच्छा, ये आपके पास अब चूंकि रेगुलर एलिमेंट आ गया, बाय थ्योरम 7.10 जो पहला रिजल्ट है हमारा, if x minus 1 नाम is less than 1 then x is regular, means its inverse exists. और इसका इनवर्स हमने कैसे लिखा था, that is represented by the formula x inverse equal to 1 plus sum n varies from 0 to from 1 to infinity 1 minus x power n. अब x naught inverse x आपका रेगुलर एलिमेंट आ गया. By the same formula its inverse can be written as, ये जरा एक मिनट कंसंट्रेट करना, साइड पे लिखा हुआ है x इनवर्स x नॉट, इग्नोरिंग दिस एट द मोमेंट, इसको इग्नोर कर ले फिलहाल. आपका एलिमेंट है x इनवर्स x, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसका इनवर्स हम डिनोट करेंगे बाय x नॉट इनवर्स x इनवर्स, and by that formula it is equal to 1 plus sum n varies from 1 to infinity 1 minus x naught inverse x power n. This is by the formula in our first result. आप आ जाएं ये राइट हैंड साइड टर्म पे. राइट हैंड साइड का आप इनवर्स ले रहे हैं, इसको अगर आप एक्सपेंड कर इसको लिख लें, x पहले आ जाएगा x इनवर्स और फिर आ जाएगा x नॉट इनवर्स इनवर्स which is equal to x naught. So you get the left hand side term because you have this formula a plus ab in power ab inverse equal to b inverse a inverse. ये हमारे पास रिजल्ट, ठीक है. So we can write this x naught x inverse x naught which is the inverse of this x naught inverse x, and we know that the inverse of an element, if satisfying that condition that x minus 1 norm is less than 1, then it is regular. So this is, we have the inverse of this element which is shown in this formula 2. All right. अब हमने शो करने using the delta epsilon definition.
of continuous function. यहाँ पे आपके पास है x इनवर्स माइनस x नॉट इनवर्स. इसका क्या मतलब है? अभी जो मैंने बताया कि ऊपर स्टेटमेंट में आपके पास मैपिंग लिखा है ax converges to x inverse, that is a map from G to G. मैंने कहा इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं f of x equal to x inverse, right? कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? एट द पॉइंट x नॉट if f of x minus f of x नॉट absolute is या नाम is less than delta epsilon, whenever x minus x naught absolute or नाम is less than delta. ये फर्स्ट एलिमेंट जो आपका है f x इनवर्स, this is in fact f of x minus x naught inverse, this is your f of x naught. ये उनके इमेजेस है. The image of x under f is x inverse. The image of x naught under f is x naught inverse. So ये आपके पास सिर्फ एलिमेंट्स नहीं है. These are the images of the function f of x and f of x naught. Right? आप इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं. On the right hand side, x inverse x naught minus 1. फिर से x naught हमने right hand side पे बाहर निकाला. Since these are the elements of algebra, and in algebra associative or distributive property holds, and then using the definition of Banach algebra, we have this is less than equal to x naught inverse now into x inverse x naught minus 1 now, and this is equal to x naught inverse now, and you see that by 2 में 1 को आप शिफ्ट कर लें ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड. आपके पास ऊपर इनइक्वालिटी है 2, इक्वालिटी 2, उसमें 1 को आप शिफ्ट कर लें ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड. यू गेट x इनवर्स x नॉट माइनस 1 विच इज इक्वल टू दिस सम. अब यहाँ पे भी वही टर्म है आपके पास x इनवर्स x नॉट माइनस 1 by 2. This is equal to the sum, क्योंकि 1 आपका लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया इनटू में, and this is less than equal to x naught inverse now into sum n varies from 1 to infinity 1 minus x naught inverse x power n. Now this is by the definition of now we know that x plus y now is less than equal to x now plus y now. अगर 3 एलिमेंट्स है x plus y plus z, that is less than equal to x now plus y now plus z now. और समेशन फॉर्म में आप लिख सकते हैं सम i varies from 1 to 3 एलिमेंट्स है xi या yi जो भी आप लिखें लेस देन इक्वल टू. राइट साइड पे सम पहले आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इनसाइड xi आ जाएगा. So this is less than equal to this x and not power minus 1 absolute into this sum. अच्छा, सेकंड टर्म में सम को इग्नोर कर लें फिलहाल, फिर वही रिजल्ट आप यूज करें जो बार बार मैं कह रहा हूँ. x पावर n नाम इज इक्वल टू x नाम n. वहां पे x पे हमने नाम n लिया हुआ था, फिर नाम लिया था. अब that is less than equal to x आ जाएगा नाम और फिर नाम का पावर आ जाएगा n. So this step is obtained by using one of our previous result. We have this x naught inverse now into this sum from 1 to infinity 1 minus x naught inverse x now
power n, and this is equal to x naught inverse. now अब इस सम से हमने एक टर्म बाहर निकाली 1 माइनस एक्स नॉट एक्स नाम, ये एक टर्म उस सम से हमने निकाली. नो इन दिस केस योर सम विल स्टार्ट फ्रॉम 0. इसको अगर फिर अंदर ले जाएं सम के साथ ऐड कर ले, देन यू गेट सम n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. अब एक टर्म बाहर आ गई, सो दिस सम स्टार्ट फ्रॉम. इसको आप चेक भी कर सकते हैं, बेशक चेक कर लें इस लेफ्ट हैंड से ये सम को एक्सपेंड कर लें, फिर 1 माइनस एक्स नॉट इनवर्स एक्स नाम से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास ऊपर वाली टर्म आ जाएगी. राइट, एंड देन दिस इज इक्वल टू अब ये इस स्लाइड में थोड़ी सी कैलकुलेशंस है, इसका ख्याल रखें. So from previous page we have this x naught inverse now into 1 minus x naught inverse x now, और फिर है हमारे पास सम को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया विद this by 1 minus x naught inverse x now, इससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया. Doesn't make any difference, right? And from this we get that x naught inverse now into 1 minus x naught inverse x now. अब जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास टर्म है, सम को एक्सपेंड कर ले और फिर 1 माइनस एक्स नॉट इनवर्स एक्स नाम से मल्टीप्लाई कर ले. न्यूमरेटर में आपके पास 1 रह जाएगा, ओनली 1, बाकी टर्में आपकी कैंसिल हो जाएंगी. एंड डाउन यू हैव दिस 1 माइनस, एंड डिनोमिनेटर you have 1 minus x naught inverse x now. So we have this inequality x inverse minus x naught inverse nam is less than this term. We call this 3. अच्छा, this कहाँ पे था हमने कैलकुलेट किया दैट, यस right, we have this x naught inverse x minus 1 now less than 1 over 2. ये हमने शो किया हुआ है पीछे. So this is, we have this, and इस ये इनइक्वालिटी इसको मल्टीप्लाई कर लें बाय -1. ये ख्याल रखें इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी, देन द इनइक्वालिटी विल रिवर्स. फॉर एग्जांपल 2 इज लेस देन 3. अब दोनों साइड को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें आपके पास आ जाएगा -2 ग्रेटर देन -3. जाहिर है -2 इज ग्रेटर देन -3. सो दिस इनइक्वालिटी विल रिवर्स. बस 10 मिनट सिर्फ चाहिए, फिर खत्म इसको. राइट, एक हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर. अच्छा, मैंने कहा ये चले तो नहीं गए आप? नहीं सर, ओके सर, राइट, प्रेजेंट. ओके. इनइक्वालिटी आपके पास, इसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इनइक्वालिटी विल रिवर्स, दैट इज ग्रेटर देन -1 over 2. आप दोनों साइड
के साथ 1 ऐड कर ले